of course, on ground, it is continuously, been a challenge for these teams who have come together. Let's also tell you, according to Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan's office, the chances of finding more survivors trapped in the landslide leveled Mundakai. This is one of the areas. Remember, Churumala is the other one, and Attamalai settlements were extremely slim, according to him. You're looking at visuals of this, which came in yesterday, we believe, as far as him taking that aerial survey as well. He did go on to visit. Remember, Rahul Gandhi and his sister Priyanka Gandhi Vadra too did meet the affected survivors of the landslides in these relief camps. In fact, Priyanka Gandhi Vadra also spoke about how it has been a testing time for the people living in these villages, and they have said that they're traumatized to such a level that they wouldn't want to go back to the area once again, which is why she said that the focus would also be on looking at how they can be relocated for better rehabilitation. Having said that, you're also looking at these warning color codes on your screens right now. This was also into the context of the fact the center had told, when this, of course, point was raised by the state government, that there were no warnings that was given to Kerala as far as this is concerned. But the center, of course, countered that by saying that was in fact done in place, while both of them did have a political war of words over the same. Remember, the situation continues to be extremely bleak. You're looking at drone shots of Wayanad. This is essentially showing you what the destruction of this landslide has resulted into. Remember, it's not just roads. We're talking about towns, several towns that have been washed away due to the impact of it. The intensity of the rainfall, the intensity of the landslide was so much more than one could have actually anticipated. But rescue operations have clearly been hindered by slippery terrain and inclement weather. My colleague Pinky Rajpurohit, who has been on ground zero and continuously been reporting, joins me live this morning. Pinky, good morning. सबसे पहले, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ आपको और अपने वीजे को, जो आप कर रहे हैं इस वक्त, डिस्पाइट ऑल द ऑड्स, वी हैव टू अप्रिशिएट यू फॉर द सेम. लेकिन जहाँ तक अभी की बात है ग्राउंड जीरो की सिचुएशन का, बहुत सारे अड़चने अभी भी है रेस्क्यू टीम्स के लिए, क्योंकि ये टेरेन जो है काफी स्लिपरी है. देखिए, बिल्कुल लगातार रेस्क्यू टीम्स जो तमाम ऑड्स के बावजूद पिछले कई घंटों से लगातार रेस्क्यू वर्क जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. साथ ही आपको बता दें कि चूरमला से जो मुंडकई का रास्ता है वो जिस तरह से टूट चुका था, उसके बाद आर्मी ने जो है बेलिस ब्रिज बना दिया, जहां से हेवी मशीनरीज जो है अब वो उस मौके तक पहुंच पा रही है, जिससे अब और ज्यादा तेजी आएगी लोगों को मलबों से बाहर निकालने को लेकर. लेकिन ये तमाम तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो इस डेवस्टेशन की तस्वीरें जो है आपको दिखाने के लिए काफी है कि किस हद तक ये लैंडस्लाइड जो अपने पीछे बहुत बड़ा डैमेज छोड़ गया है. वो गाड़ी मैं अपने कैमरा पर्सन टॉमसन जेकब को कहूंगी आपको दिखाए कि इस किस अवस्था में जो है वहां पर ये दिखाई देगी. साथ ही इस तरफ भी अगर आप देखेंगे एक और गाड़ी जो है इसी तरह से मलबे में फंसी हुई है. यानी जब बड़ी बड़ी गाड़ियों का अगर ये हादसा हुआ है आज, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस मलबों के नीचे जब लोग दबे होंगे वो किस हालात में होंगे. कल हम लगातार इस रेस्क्यू वर्क को देखते रहे, जिस तरह की हालत में डेड बॉडीज को निकाला जा रहा है. बहुत ही दयनीय, दुखद और डरावनी तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं. अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी पीछे भी आपको ये तस्वीरें दिखाए कि किस तरह से ये तमाम जो घर है यहाँ पर, इस वक्त हम चूरमला में मौजूद है, माफ कीजिएगा, ये तमाम जो घर है वो इस बात की गवाही पीछे छोड़ गया है. साथ ही आपको बता दें कि इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने अपनी तरफ से जो तस्वीरें जाहिर की है वो दिखाती है कि इस लैंडस्लाइड से पहले ये पूरा टेरेन जो है वो कैसा होता था और अब कितना बड़ा नुकसान जो है वो ये टेरेन कर गया. देखिए, इसका फोर्स इतना ज्यादा था लैंडस्लाइड का कि लोग जो है वो पूरी तरह से बहकर 90 किलोमीटर दूर निलंबूर तक पहुंच गए. वहां से उनकी डेड बॉडीज को वापस लाया गया. तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस लैंडस्लाइड के कारण लोगों ने किस तरह से अपनी जिंदगी, अपने आशियानों को खोया है. बैक टू यू. Jay Pinky, and we are of course looking at the impact that this particular landslide has had. In fact, we're looking at those
particular visuals on our screens. लेकिन having said that, जो आपके reports में भी हमने देखा multiple teams coming together for rescue operation, या जहाँ तक sniper dogs भी लेके आए थे for better investigation ताकि वो bodies को identify किया जाए, लेकिन इस वक्त जो काफ़ी concerning लग रहा है क्योंकि मलबों के नीचे और ज़्यादा लोग फंसे होंगे, तो कहीं ना कहीं unfortunately ये death toll rise करेगा। देखिए बिल्कुल ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट कहूंगी मैं कि हमें ये कहना पड़ रहा है कि डेथ टोल जो है उसके आंकड़े अब और ज्यादा ऊपर जाएंगे, क्योंकि कल भी जब मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया गया तमाम वर्क को लेकर, उसमें यही कहा गया है कि क्योंकि आज चौथा दिन है तो ऐसे में मलबों के नीचे जो लोग दबे हुए हैं उनका जिंदा बच पाना लगभग नामुमकिन दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि अगर हम एक गांव की बात करें तो केवल वोटर्स की संख्या जो है वो 3000 के आसपास बताई जा रही है, और उनके बच्चे, उनके परिवार वालों जो नॉन वोटर्स है उनको मिलाकर आप सोच सकते हैं कि संख्या कितनी ज्यादा होगी। तो जब एक गांव की संख्या इतनी ज्यादा है और दो गांव पूरी तरह से बह जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ सकता है। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेटली हमें बताना पड़ रहा है कि आने वाले दिनों में ये आंकड़ा जो है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे लोगों के बचने की जो उम्मीदें हैं वो खत्म होती दिखाई दे रही है। जी जी पिंकी, और जिस तरह से आपने कहा कि चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने इस सिचुएशन का जो रिव्यू मीटिंग था, ऑल पार्टी मीटिंग, जहां तक वो सोल्यूशंस निकाले, क्या कुछ जानते हैं हम इस वक्त कि ये सिचुएशन को कैसे नेविगेट कर रही है स्टेट? देखिए जहां तक इस सिचुएशन को फिलहाल नेविगेट करने की बात है तो लगातार जैसे बता रहे हैं हम कि तमाम रेस्क्यू टीम, चाहे वो राज्य की एसडीआरएफ, लोकल फायर एंड रेस्क्यू टीम हो, एनडीआरएफ हो, डिफेंस पर्सोनल हो, जो लगातार इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी लगातार इसमें जुटी हुई है, कोस्ट गार्ड की टीम यहाँ पर मौजूद है। पूरी तरह से युद्ध स्तर पर इस रेस्क्यू वर्क को फिलहाल किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों के अगर बचने के चांसेस है तो उन्हें जल्द से जल्द निकाला जाए। लेकिन जैसे कि हम कह रहे हैं वक्त बीता जा रहा है, उम्मीदें कम होती जा रही है। दूसरी तरफ लगातार जो है सरकार जी। भी कटघरे में तो खड़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये एक ऐसा डिजास्टर था जिसे बचाया जा सकता था, पहले से अलर्ट था, क्या लोगों को जो है अलर्ट नहीं किया गया, तमाम सवाल जो वो उठ रहे हैं। इसके अलावा केरला की डेमोग्राफी की अगर बात करें तो काफी स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, और यही कारण है कि कोई नहीं जानता कि कहाँ कहाँ पर ये लोग जो है फंसे हुए हो सकते हैं। अगर हम आपको ये तमाम तस्वीरें भी दिखाएं, आपको दिखाई देगा कि पूरी बस्ती एक साथ यहाँ पर जमी हुई नहीं होती है। यहाँ पर एक घर थोड़ी दूर दूर जो है स्कैटर्ड तरीके से बनाए जाते हैं, और यही कारण है कि बहुत मुश्किल हो रहा है तमाम रेस्क्यू पर्सोनल के लिए ये पता लगाना कि कहाँ पर कौन फंसा हुआ हो सकता है। और इसीलिए स्निफर डॉग्स की मदद ली जा रही है, थर्मल कैमरा की जो है मदद ली जा रही है, तमाम जो मशीनरीज अवेलेबल है ताकि मलबों के नीचे से जल्द इन लोगों को पता लगाया जा सके, वो सभी मेजर्स लिए जा रहे हैं। लेकिन मलबा इतना ज्यादा है कि चुनौतियों से भरा हुआ ये मलबा है जहाँ पर लोगों को का पता लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल ही नहीं नामुमकिन इस वक्त दिखाई दे रहा है। जी Ji Pinky, appreciate you as well as your VJ Thompson Jacob for getting us the latest from this particular situation. But you have raised very important concerns as well.